ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਨ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 11E। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੂ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਥੀਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਾਈਜ਼ ਹੋਲੀ ਔਨ ਇਟ। ਪਲੇਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਲੇਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੇਨ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, r into n ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ p। ਕਾਰਟੀਸ਼ੀਅਨ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, lx plus my plus nz ਇਕੁਅਲ ਟੂ p। ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ax plus by plus cz plus d ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮਸ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਫਾਰਮ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, r ਮਾਈਨਸ r1, r ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਟੂ n ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਔਰ ਇਹਦੀ ਕਾਰਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, a ਇੰਟੂ x ਮਾਈਨਸ x1, b इंटू वाई माइनस y1, c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਨ ਥਰੂ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦਾ ਗਿਵਨ ਲਾਈਨਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਲੇਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਲੇਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, x1 y1 z1, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਗਿਵਨ ਲਾਈਨਸ, ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਏਗੀ। ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ r a ਪਲਸ ਲੈਮੜਾ b, ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ r a ਪਲਸ ਮਿਊ b ਡੈਸ਼। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, x ਮਾਈਨਸ x1, y ਮਾਈਨਸ y1, z ਮਾਈਨਸ z1। ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ a1 b1 ਤੇ c1, ਜੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ a1 b1 c1, ਔਰ ਇਧਰ ਹੋਊਗਾ a2 b2 c2, ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਨ ਥਰੂ ਟੂ ਲਾਈਨਸ, ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, equation of plane passing through x1 y1 z1 x2 y2 z2 and parallel to the line having direction ratios this। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ। ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ। ਤਾਂ x ਮਾਈਨਸ x1 y ਮਾਈਨਸ y1 z ਮਾਈਨਸ z1, x2 ਮਾਈਨਸ x1 y2 ਮਾਈਨਸ y1 z2 ਮਾਈਨਸ z1, a b c ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋ गया। और 3 पॉइंट फॉर्म, 3 पॉइंट अगर तीनों पॉइंट से जो पास कर दिए, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2, x माइनस x3 y माइनस y3 z माइनस z3 इक्वल टू ਇਹਦਾ डिटरमिनेंट 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, क्लियर। और नैक्सट है इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो अपने को तीन एक्सिस होंगे ने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ते जेड एक्सिस। हुण जिहड़ा वाई एक्सिस हुंदा उह ते कल्ला वाई वाला पॉइंट होगा, बाकी दोनों 0 होणगे एक्स ते जेड। ठीक है, जिहड़ा एक्स एक्सिस होएगा उहदे ते वाई ते जेड 0 होणगे, जिहड़ा जेड एक्स होएगा उहदे ते एक्स ते वाई दोनों 0 होणगे। देखो एक्स नूं एक्स लाइन कित्थे कट रही है, ए ते कट रही है, वाई नूं बी ते कट रही है, जेड नूं सी ते कट रही है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म इहदी की हुंदी है, एक्स अपॉन ए, वाई अपॉन बी और जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, हुण नैक्सट है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड पैरेलल टू द लाइन। ये आप ऊपर पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, दो पॉइंटां दे विचों पास कर दी है और एक लाइन दे की है पैरेलल है। नैक्सट है इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। अगर दो प्लेन्स दे इंटरसेक्शन पास हो रही है तो पहला प्लेन प्लस लैमड़ा, दूजा प्लेन लैमड़ा की तुहाडे कोले कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है स्केलर। पहला देखो a1 x1 b1 y c1 z d1 पहला प्लेन प्लस लैमड़ा दूसरा प्लेन इक्वल टू 0। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल दो प्लेन्स दे विच एंगल, वैसे आपां नूं ये टॉपिक जिहड़ा हैगा कट हो गया, इस करके आपां नैक्सट एक्सरसाइज तां कर ही नहीं रहे, पर ये आपां एंगल नहीं कढ रहे। वैसे इहदे च आपां नूं सिर्फ परपेंडिकुलर ते पैरेलल वास्ते जिहड़ियां कंडीशन चाहीदियां ओही देखांगे। अक्यूट एंगल कढना ते ये हुंदा, ऑब्टयूस एंगल कढना ते इहदे नाल नैगेटिव लग जांदा। उस तो बाद देखो की है,
ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਪੈਰਲਲ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਂਗਲ ਆਪਣਾ ਇਸ ਵਾਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਫਰਮ ਅ ਪਲੇਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪਲੇਨ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ? ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ x1 y1 z1, ਪਲੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ax by cz d = 0। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਲੇਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਪਨ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੱਢ ਦੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, हम देखो फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। दोनों प्लेन पैरेलल ने, तुहाडे कोले 2x - y 3z 4 ते 18, दोनों प्लेन पैरेलल है। अगर प्लेन पैरेलल है तो उन्हां दा डिस्टेंस की आएगा? डिस्टेंस आएगा d2 - d1 दा मैग्नीट्यूड अपॉन इनदे जिहड़े डायरेक्शन रेशियोज है उन्हां दे मैग्नीट्यूड कढ दांगे आपां। 18 - 4 दी मॉडुलस वैल्यू, 4 + 1 + 9, 18 - 4 14 अपॉन √14 कट गया, √14 यूनिट्स तुहाडा आंसर है। सैकेंड है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन दिस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन तो तुसीं ओहदा डिस्टेंस कढना, तो प्लेन तुहाडा ये है। ठीक है, तो आपां की करांगे? आ देखो इत्थे आपां ही कीता सी, पॉइंट नूं इत्थे लाई करवाता सी, जिहड़े ओरिजिन दे पॉइंट इत्थे लाई करवा दो। डिस्टेंस की आएगा 2 × 0 - 3 × 0 + 4 × 0 - 6 दी मॉडुलस वैल्यू अपॉन एदा 4 9 16 कितना हो गया? 0 0 0, सिर्फ 6 रह गया ऊपर। ठीक है, -6 सीगा, मैं ओहदी एब्सोल्यूट वैल्यू लवांगी तो तुहाडे कोले 6 रह जाऊगा। ये कितना बन गया? 29 रूट आपां नूं नीचे पसंद नहीं तो आपां की कर दांगे 6 √29 अपॉन 29 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इंटरसेप्ट कट बाय द प्लेन दिस विद द एक्स एक्सिस। सारियां एक्सिस नाल तुसी इंटरसेप्ट फॉर्म कढनी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 2x + y - z = 5। ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? x upon a, y upon b, z upon c = 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? 2x upon 5, y upon 5, z upon 5 = 1। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵੀ 1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2 ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲਿਆਓ, x upon 5 upon 2, y upon 5, z upon 5 = 0। तो इंटरसेप्ट की आ गया? x एक्सिस नाल 5/2 दा आ गया, y एक्सिस नाल 5 दा आ गया और z एक्सिस नाल की हो गया? इनू प्लस कर देंगे, ये हो जाऊगा -5 हो जाऊगा क्योंकि अपने को इत्थे प्लस। क्लियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद द इंटरसेप्ट दिस x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। इंटरसेप्ट फॉर्म कढनी है। ABC तुहानू दिता होया, डायरेक्ट आप x upon a 2, y upon b 3, z upon c 4 = 1 आ बन गई। ठीक है, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया? 12 आ गया। जे तो इंटरसेप्ट इन्हों ने आपां नूं वैसे किया सी प्लेन दी इक्वेशन, जे इंटरसेप्ट फॉर्म कहंदे तो यही रख दे। एलसीएम ला लो, 6 आ गया, 6x + 4y + 3z = 1। इधर मल्टीप्लाई कर दो, 6x + 4y + 3z = 12। ये तुहाडी प्लेन दी इक्वेशन है। क्लियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। प्लेन दी वेक्टर इक्वेशन कढनी है। पासिंग थ्रू द पॉइंट जिहड़ी ABC दे विचों पास करदी है एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस, इहदे पैरेलल। इहनूं मैं 1 ले लैनी है, ए पॉइंट चों पास करदी है। तो आपां किवें कढांगे? ए पॉइंट चों पास करदी इक्वेशन। ठीक है, पहलां आपां ले लैने इक्वेशन आपां नूं की दित्ती होई है x, ये आपां नूं गिवन है। r नूं आपां की लिख सकदे हां xi, yj, zk और ये की है i + j + k = 2। इनू मल्टीप्लाई कर दो, x + y + z = 2 आ गया। हुण जिहड़ी इक्वेशन आ वो इहदे पैरेलल है ना, आ वाली इक्वेशन दे, तो वो इक्वेशन तुहाडी की होएगी x + y + z। जिहड़ी इहदे पैरेलल आ, इट मीनस उहदे डायरेक्शन रेशो सेम होणगे बट डिस्टेंस डिफरेंट होएगा। तो इधर आपां कांस्टेंट की ले लैने, k ले लैने। ठीक है, तो हुण देखो ये किहड़े पॉइंट चों पास कर रही है? ABC दे विचों। इनू ABC दे विचों पास करा दो, x y z की जगह ते इनू लिख लो 2 2 पासिस थ्रू ABC। तो इत्थे पुट कर दो ABC = k दी वैल्यू आ गई, k दी वैल्यू इत्थे पुट कर दो। तो इक्वेशन की बन गई x + y + z = a + b + c। बट आपां वैक्टर फॉर्म लिखनी है, r ×
इधर की आ जाऊगा तुहाडे कोले आई प्लस जे प्लस के, क्योंकि इत्थों ही आया सी इक्वल टू की आ जाऊगा ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Find the coordinates of the point where the line through the point this crosses the xy plane, xy plane ਨੂੰ yz ਤੇ zx plane ਨੂੰ cross ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੱਢਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਲੇਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰੂਗੀ, xy ਪਲੇਨ ਨੂੰ, yz ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਤੇ zx ਪਲੇਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ, ਲਾइन की इक्वेशन की आएगी, दोनों पॉइंट चो पास कर दी, x माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 3 2, y माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 4 माइनस 3, z माइनस 1 अपॉन 6 माइनस 1 5। ये आ गई। ये ते कोई भी पॉइंट आप के ले लीए तो के पॉइंट केड़ा आ गया 2k प्लस 3 माइनस 3k प्लस 4 5k प्लस 1। ये पॉइंट ए वाली लाइन ते है, ठीक है। ए वाली लाइन ते वाला पॉइंट आ, अगर पहला की है जेड़ा लाइन आ एक्स वाई प्लेन ते लाई करती है, देयरफॉर की होगा z0 होगा, एक्स वाई प्लेन ते z0, वाई जेड प्लेन ते x0, zx प्लेन ते y0, ऐदा होंगे, ठीक है। तो z0 आ तो z वाले पॉइंट नू 0 ले लो, यानी कि 5k प्लस 1 इक्वल टू 0। k दी वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1 अपॉन 5, एच पुट कर दो, 2 इंटू माइनस इक्वल 5 प्लस 3 माइनस 3 इंटू माइनस इक्वल 5 प्लस 4, ठीक है। तो लास्ट वाला पॉइंट क्या आ जाऊगा 0 आ जाऊगा। ये कितना आ गया माइनस 2/5 प्लस 3 प्लस 3/5 प्लस 4 0। तो पॉइंट कितना आ गया 15 तो 2 गए 13/5, 20 ते 3 23/5 ते 0। ये पॉइंट आ गया तुहाडा जिथे ये एक्स वाई प्लेन नू कट कर दे, वाई जेड ते जेड एक्स तुसीं खुद सॉल्व करना। नेक्स्ट है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन which is at a distance of this units from the origin। origin तो ओदा distance कितना है 6/29 units है, ठीक है। एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द origin, नॉर्मल n दिता होया तुहानू, n दिता होया 2i माइनस 3j प्लस 4k। आल्सो फाइंड इट्स कार्टेशियन फॉर्म। पहला तुसी वेक्टर इक्वेशन कढनी है, फिर तुसी कढनी है कार्टेशियन। वेक्टर इक्वेशन की हुंदी है r डॉट n कैप इक्वल टू d हुंदी है, आई चीज हुंदी है। n कैप कढ लो, पहला n दिता होया, n कैप की होएगा 2i माइनस 3j प्लस 4k अपॉन इन्हां दे स्केयरां दा रूट 9 प्लस 16। ऊपर आ गया 2i माइनस 3j प्लस 4k बटा रूट 29 है, ठीक है। ये आ गया तुहाडा n। हुण नैक्सट इन्हां ने की किया होया इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन की होएगी r, r नू आपां एज इट इज ले लांगे इनटू n नॉर्मल, नॉर्मल ये वाला इनू लिख लेने 2/29 i, 3/√29 j, 4/√29 k और d की दे इक्वल आ, d दिता होया 6/√29, ठीक है। उस तो बाद लिखनी आपां इहदी कार्टेशियन फॉर्म, ते इत्थे दी वैल्यू पुट कर दो xi प्लस yj, कार्टेशियन फॉर्म है कार्टेशियन, ठीक है। प्लस zk इंटू 2/√29, 3/√29, 4/√29 k, 6/√29, ठीक है। हम देखो इन्हें इधर मल्टीप्लाई करोगे 2/√29 x, 3/√29 y, 4/√29 z इज इक्वल टू 6/√29। एलसीएम लैके इनू कट कर दो 2x माइनस 3y प्लस 4z की दे इक्वल आ गया 6 दे इक्वल आ गया। ये भी आ गई कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। जेड़ा ये प्लेन दे परपेंडिकुलर होएगा और ओरिजिन चों पास करता होगा, ठीक है। तो देखो अपने कोले की है गिवन वेक्टर की दिता होया तुहानू r डॉट 6i प्लस दे माइनस 3j माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपां नू गिवन। हुण आपां 1 नू उधर ले जाने, जे 1 नू उधर लेके जाओगे तो 1 माइनस हो जाऊगा, माइनस नाल इनू डिवाइड कर दो 6i 3j
2k इक्वल टू 1 करता। ये आ गया अपने को। हुण आपां नूं की चाहिदा, यूनिट वैक्टर चाहिदा। आ जिहड़ा हुंदा नाल ये नॉर्मल की लग्या हुंदा, इहदा आपां यूनिट वैक्टर कढ सकदे हां, ये नॉर्मल हुंदा गा। हुण इहदा यूनिट वैक्टर पहलां दा मैगनीट्यूड कढ लो, मैगनीट्यूड कढोगे 6i प्लस 3j प्लस 2k, इहदा मैगनीट्यूड कढो 36 9 प्लस 4 49 इज इक्वल टू 7 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया तुहाडे कोले 7। इहदा हुण तुसीं की कढोगे, इहनूं सारे नूं 7 नाल डिवाइड कर लो, इधर कितना आ जाऊगा 1/7 आ जाऊगा। ठीक है, r इंटू माइनस 6/7 i प्लस 3/7 j प्लस 2/7 k इक्वल टू 1/7। पूरी इक्वेशन आप डिवाइड करता। आपां नूं पता है r डॉट n किहदे इक्वल हुंदा, p दे इक्वल हुंदा, तो n कैप आ गया तुहाडा यूनिट वैक्टर। ये यूनिट वैक्टर ते डायरेक्शन रेशियोज की ने -6/7 3/7 ते 2/7। क्लियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स दिस एंड दिस यूजिंग वेक्टर मैथड। बस तुसी एंगल पता करना है। एंगल की हुंदा cos थीटा, वेक्टर मैथड है तो आ लिख लो n1 डॉट n2 अपॉन n1 द मैग्नीट्यूड, सॉरी n2 द मैग्नीट्यूड। बस n1 2 गुणा 3 6 आ गया, y इंटू -6 आ गया, -2 प्लस 2 प्लस दे 4 आ गया। ठीक है, अपॉन कितना आ जाऊगा इहदा, इहदा कड्डोगे 4 प्लस 1 प्लस 4 और इहदा कितना आ जाऊगा 9 प्लस 6 सॉरी 36 प्लस 4 आ गया। तो ये कितना बन गया 4 रह गया ऊपर, तो नीचे कितना बन गया 3 9 बन गया, और ये कितना बन गया 7 4/1 ही आ गया। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई cos इनवर्स 4/29 आ गई। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू लाइन दिस। दो पॉइंटा चो पास कर दी है, एक लाइन दे पैरेलल। ठीक है, दो पॉइंट्स चो पास कर दी है, एक लाइन दे पैरेलल। तो आपां किवें कीती सी, दो पॉइंटा चो पास कर दी तो आपां किवें कड्ढी सी x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2 अपॉन a b c दा डिटरमिनेंट 0 देकर कढ लो। x माइनस x1 x माइनस 1 y माइनस 0 z माइनस 1 प्लस 1 हो गए। और नेक्स्ट x माइनस x2 3 y माइनस y2 z माइनस z2। डायरेक्शन रेशियोज किन्ने ने 1 2 1 माइनस 2 ते 3 इक्वल टू 0। इनू सॉल्व कर लो, पहला इहदे नाल एक्सपैंड करिए, x माइनस 1 नाल कैंसल हो गया, ये कितना आ गया 3y माइनस 6 माइनस y नाल करांगे कैंसल हो गया, इनू इहदे नाल करांगे 3x माइनस 9। ठीक है, और माइनस सॉरी इधर लिखने वाला रह गया, ये कैंसल हो गया, माइनस आ भी आऊगा इत्थे आ जाऊगा माइनस माइनस प्लस 2z माइनस 4 और ये नाल भी आऊगा माइनस, ये कैंसल हो गया, z प्लस 2 आ जाऊगा, प्लस z प्लस 1 नाल करांगे आ ते आ कैंसल हो गए, माइनस 2x प्लस 6 माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0 रख दो। ठीक है, ये इक्वेशन नूं सॉल्व कर लो, सॉल्व करके तुहाडे कोले जिहड़ी हैगी आ प्लेन दी इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। इन्हां दोनों जो पास कर दी है, ये वाले की है प्लेन दे परपेंडिकुलर है, तो पहला आपां इहदे चों पास कर दी है तो इहदे परपेंडिकुलर है। वो इक्वेशन तुसीं किवें कढोगे, देखो पहला तो आपां इक्वेशन लैने आ प्लेन दी जिहड़ी जर्नल इक्वेशन हुंदी है ax प्लस by cz इक्वल टू d हुंदी है ना, इक्वल टू 0 हुंदी है। ठीक है, इहदे च इहनूं इह चों पास करा दो, किहड़े पॉइंट चों पहले चों x माइनस 1 b इंटू वाई प्लस 1 c इंटू z माइनस 2 इक्वल टू 0, ये पहला आ गया। हुण यही पासिस थ्रो 1 पासिस थ्रो किहड़े पॉइंट चों 2 माइनस 2 ते 2 दूजे पॉइंट चों ही पास कर दिए, इन्हूं दूजे चों ही पास करा दो 2 माइनस 1 b इंटू माइनस 2 प्लस 1 c इंटू 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। ये कितना आ गया a माइनस b इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि c की वैल्यू तो 0 होगी। ठीक है, ये बन गई तुहाडी सैकेंड इक्वेशन। इन्हां दोनों नूं सॉल्व कर लो 23 12 नाल, a अपॉन b अपॉन c अपॉन a दे नीचे आ गया 1 b दे नीचे 1 ते c दे नीचे माइनस 2 k दे इक्वल रख लो, a दी वैल्यू k b दी वैल्यू k ते c दी वैल्यू कितनी हैगी माइनस 2 k हैगी। इनू फर्स्ट इक्वेशन च पुट कर दो, a दी वैल्यू हैगी k इंटू x माइनस 1
बी की वैल्यू हैगी k इंटू वाई प्लस 1 और सी की वैल्यू हैगी -2k(z-2) इक्वल टू 0। के नाल सारी इक्वेशन डिवाइड कर दो, x माइनस 1 वाई प्लस 1 z-2 सॉरी 2z प्लस 4 इक्वल टू 0 आ गया। तो इक्वेशन की बन गई x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 4 इक्वल टू 0। आ वाली इक्वेशन तुहाडी आ जाएगी, ठीक है। और उस तो बाद परपेंडिकुलर सीगी ਉਹਦੇ थर्ड ਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। 2 ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕੱਢਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੜਬੜ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ ਨਾ ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੂਗੀ? ਇੱਥੋਂ ਬਣੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਆ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਲਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬਣੂਗੀ 6a ਮਾਈਨਸ 2b ਪਲਸ 2z ਇਕੁਅਲ ਟੂ 9। ਇਹ ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਥਰਡ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ABC ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ? ਨਾਓ ਮੂਵ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। 3 ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ x ਮਾਈਨਸ x1 y ਮਾਈਨਸ y1 z ਮਾਈਨਸ z1। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ax ਪਲਸ by ਪਲਸ cz ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। 1 ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ 2 1 0। ਇਹ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ। a ਇੰਟੂ x ਮਾਈਨਸ 2 b ਇੰਟੂ y ਮਾਈਨਸ 1 c ਇੰਟੂ z ਮਾਈਨਸ 0। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? a ਇੰਟੂ x ਮਾਈਨਸ 2 b ਇੰਟੂ y ਮਾਈਨਸ 1 ਤੇ c z ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ। a ਇੰਟੂ 3 ਮਾਈਨਸ 2 b ਇੰਟੂ ਮਾਈਨਸ 2 ਮਾਈਨਸ 1 c ਇੰਟੂ ਮਾਈਨਸ 2। ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? a ਮਾਈਨਸ 3b ਮਾਈਨਸ 2c ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ। a ਇੰਟੂ 3 ਮਾਈਨਸ 2 b ਇੰਟੂ 1 ਮਾਈਨਸ 1 c इंटू 7 इक्वल टू 0। तो यह बन गया a प्लस 7c इक्वल टू 0। बस 23 बार नाल इनू सॉल्व कर लो, a b c कढ़ लो, ठीक है। a b c कढ़ोगे, ये आ गया 7, ये आ गया माइनस, ये आ गया 3 तो ये आ गया -1 इक्वल टू k आ रहे ने। a की वैल्यू कितनी आ गई? 7k, b की वैल्यू 3k, c की वैल्यू -k। तीनों वैल्यूज ये पुट कर दो, सॉरी आ वाली इक्वेशन च पुट कर दो, तुहाडा आंसर आ जाए, ठीक है। ये पुट कर लो, चाहे पहली इक्वेशन च पुट कर लो, किसी च कर लो, ये भी कर सकते हो, दोनों से किसी च कर लो, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स। ये दो प्लेन्स दे विचों पास करती है और ये पॉइंट चों पास करती है। पहला तो आपां ये किवें कढिया सी? पहला 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैमड़ा दे के दूजे वैक्टर नूं प्लस कर लो, z माइनस 2 इक्वल टू 0। हुण ये 1 बन गई, इहनूं इहदे चों पास करा दो। x जगह ते 2 भरोगे तो 6 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4 प्लस लैमड़ा इंटू 2 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। ये पॉइंट चों पास कराया, कुछ नहीं किया, तो कितना आ गया? 2 नाल 2 कैंसल हो गया, सिर्फ 2 रह गया। लैमड़ा 2 नाल 2 कैंसल, 3 इक्वल टू 0। लैमड़ा की वैल्यू कितनी आ गई? -2/3 आ गई। ये वैल्यू नूं तुसीं की करोगे? इत्थे शिफ्ट कर दोगे, तुहाडी प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। की बन जाएगी? 3 ने इधर मल्टीप्लाई करोगे, 9x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 12 माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2z प्लस 4 इक्वल टू 0। 9 चो 2 गए 7x, 3 ते 2 5/6 माइनस 2 4z माइनस 8 इक्वल टू 0। 8 नूं उधर ले दो, आ बन गई तुहाडी प्लेन की इक्वेशन। क्लीयर? नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन द प्लेन दिस एंड दिस। दो प्लेन दे विचों पास करती है तो थर्ड प्लेन दे परपेंडिकुलर है, वो वाली इक्वेशन तुसी कढ़नी है, ठीक है। इक्वेशन कढ़नी है प्लेन की जिहड़ी की है दो पॉइंट्स दे जिहड़ी हैगी इंटरसेक्शन चों पास करती है तो थर्ड प्लेन दे परपेंडिकुलर। पहला तो आपां इन्हां दोनों दे इंटरसेक्शन चों इहनूं पास करवाने हैं। आर की वैल्यू भर लो पहला तो, जो तुसी आर की वैल्यू भरोगे, ठीक है। आर नूं चाहे तुसी ऐ कर लो, आर नूं कॉमन ले लो, आर डॉट आई प्लस 2j प्लस 3k माइनस 4 प्लस लैमड़ा दे के दूसरा आर की आ गया
लैमडा दे के दूसरा वैक्टर की आ जाऊगा तुहाडे कोले आर नूं मैं बाहर लै लिया 2i प्लस जे माइनस के प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, इनू आर नूं तां तुसीं लै लो कॉमन। आई नाल की बन गया 1 प्लस 2 लैमडा आई, जे का की बन गया 2 प्लस लैमडा जे, और के का की बन गया 3 माइनस लैमडा के, और कांस्टेंट वैल्यू कितनी आ गई -4 प्लस 5 लैमडा इक्वल टू 0। आ बन गई इक्वेशन। ठीक है, 1 ਇਹ ਕੀ ਹੈ 1 इज ਇਹਨੂੰ मैं 2 ਲੈ ਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇ परपेंडिकुलर है 1 इज परपेंडिकुलर टू 2 क्योंकि मैंने पूरी इक्वेशन लिखनी औखी है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये डायरेक्शन रेशोज की मल्टीप्लाई की होएगी 0 होएगी 5 इंटू 1 प्लस 2 लैमडा प्लस 3 इंटू 3 माइनस 2 प्लस लैमडा माइनस 6 इंटू 3 माइनस लैमडा इज इक्वल टू 0। इनू मल्टीप्लाई कर दो 5 प्लस 10 लैमडा 6 प्लस 3 लैमडा माइनस 18 प्लस 6 लैमडा इक्वल टू 0। 6 ते 9 9 10 19 लैमडा माइनस ये हो गया 6 ते 5 11 माइनस दे 7 इक्वल टू 0। लैमडा की वैल्यू कितनी आ गई 7/19 आ गई। इनू इत्थे भर दो तुहाडी प्लेन की इक्वेशन क्लीयर। नाउ नैक्सट क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दिस एंड दिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बस कुछ नहीं करना, सारा क्वेश्चन सेम है। पहला तो मैं ए वाली वैल्यू लिख रही हूँ आई प्लस जे प्लस के माइनस 1 प्लस लैमडा दे के आर इंटू 2i प्लस 3j माइनस के प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन की बन गई ये 1 प्लस 2 लैमडा आई बन गई, जे नाल की है 1 प्लस 3 लैमडा जे बन गई, 1 माइनस लैमडा के आ गया और कांस्टेंट की आ गया -1 प्लस 4 लैमडा इक्वल टू 0 आ गया। हुण देखो इन्होंने की किया है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर यह एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो की हो सकता है, अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स की वैल्यू होगी बाकी दोनों 0 होंगे। एक्स एक्सिस के पॉइंट किहड़े होणगे, ये वाले होणगे। तो यदा जिहड़ा नॉर्मल हो ये परपेंडिकुलर होएगा तो यदि मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस 2 लैमडा इंटू 1 1 प्लस 3 लैमडा इंटू 0 1 माइनस लैमडा इंटू 0 इक्वल टू 0। आ दोनों 0 हो गए। 1 प्लस 2 लैमडा इक्वल टू 0। लैमडा की वैल्यू कितनी आ गई -1/2 आ गई। ये वैल्यू ने इत्थे पुट कर दो, तुहाडा आंसर क्लियर। नाउ नैक्सट क्वेश्चन इफ द लाइन्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर, ये दोनों लाइना परपेंडिकुलर आ, फाइंड के फाइंड करना है। हैंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेन्स दीज लाइन्स। इन्हां दोनों लाइन नूं कंटेन करके जिहड़ा प्लेन बनूगा वो फाइंड करना। अगर ये परपेंडिकुलर तो ये डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी। ये कितना हो गया -3k, ये कितना हो गया -2k और ये कितना हो गया 10 इक्वल टू 0। ये कितना बन गया -5k इक्वल टू -10। के की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। के की वैल्यू तुहाडे कोले कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, के की वैल्यू आपां फाइंड कर चुके हैं। दैन के की वैल्यू तुहाडे कोले 2 आ गई तो इक्वेशन की आएगी, दोनों लाइनों चो पास कर दी x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 3। पहली लाइन एज इट इज, दूजी दे डायरेक्शन रेशो -3 -4 ते 2, ये कितना आ गया 2 1 5। ਇਹਦਾ डिटरमिनेंट 0 ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ प्लेन ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਨਾਓ ਮੂਵ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ फाइंड द वैक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस। इक्वेशन वैक्टर दी लाइन दी वैक्टर इक्वेशन कढ़नी है जिहड़ी जो पास करती होगी और इन्हां दोनों दे की होएगी ये प्लेन्स दे पैरेलल होएगी। पहला तो प्लेन्स नूं सही करके लिखते हैं x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5। आर की वैल्यू भरी है एक्स आई वाई से और ये कितना बन जाएगा 3x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 6। आ दोनों मेरे को बन गए प्लेन। ठीक है, हुण जिहड़ी हैगी इक्वेशन लाइन दी किहड़े पॉइंट चों पास करदी है 1 2 3 दे विचों लिख लो x माइनस 1 अपॉन ए वाई माइनस 2 अपॉन बी z माइनस 3 अपॉन सी। आ वाली हैगी। हुण ये जिहड़ी थर्ड लाइन है, ये लाइन ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। अगर इन्हां दे पैरेलल है तो एंगल किन्ने दा होएगा, इन्हां दे विच एंगल अपने कोले 0 हो जाऊगा ना। ठीक है, अगर प्लेन ते लाइन लै रही हो तो साइन थीटा लेना होंदा। साइन 0 कितना होंदा 0 हो जाऊगा। ठीक है, साइन 0 0 हो जाऊगा तो इत्थे बस इनू लै लो तुसीं, इन्हां दी मल्टीप्लाई कीदे इक्वल आ 0 दे इक्वल आ। तो ये पॉइंट कितना आ गया a माइनस बी प्लस 2c इक्वल टू 5। ये कितना आ गया 3a प्लस b प्लस 2c इक्वल टू 0। जो 3 वेरीएबल ते 2 लाइनां होण तां तुसीं इहनूं 23 वारां नाल ही सॉल्व करोगे।
ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਹੋਣ ਬਟ ਵੈਰੀਏਬਲ 3 ਹੋਣ ਤਾਂ 23 12 ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਲਵ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ -3 5 ਤੇ 4। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ, ਆ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ठीक है, तो इन्होंने आप इतने पुट करते हैं। इक्वेशन की बन गई x/-3 y-2/5 z-3/4। बट आप वैक्टर इक्वेशन लिखनी है, उत्थे आऊगा ए की होंगे जेडे पॉइंट चो पास कर रही है i + 2j + 3 की r इक्वल टू प्लस लैमडा इंटू की होंगे b1 -3i + 5j + 4। क्लियर। Now move to next question, question number 18. Find the equation of the plane passing through the point this। A point चो पास कर दी है ते परपेंडिकुलर इन्हां दोनों प्लेन्स दे जे चो पास कर दी है ते इन्हां दे परपेंडिकुलर तो की होणगे, उन्हां दे डायरेक्शन रेशियोज दी की हो जूगी मल्टीप्लाई कितनी हो जूगी 0 हो जूगी, cos थीटा 90 हो जूगा। ठीक है, एक तुसीं ध्यान रखना बस जदों दोनों जां तां प्लेन है जां दोनों लाइनस है इन्हां दे विच हमेशा cos थीटा लगूगा, जदों लाइन ते प्लेन आ जाण उदों sin थीटा लगूगा। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रख। हुण देखो की है, पहलां तां प्लेन दी इक्वेशन कढदे आ, चो पास हुंदी ओह की होगी a × x + 1 b × y + 3 c × z - 2 = 0। यही इक्वेशन बनूगी। ये आ गई फर्स्ट, इनू मैं सैकेंड लै लैनी, इनू लै लैनी थर्ड। जिहड़ी फर्स्ट इक्वेशन आ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ 2 ਤੇ 3 ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ, ਤਾਂ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ a + 2b + 3c = 5। ਇਹ ਬਣ ਜੂਗੀ 0 + 2 3b + c = 0। ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 0 ਹੋ ਜੂਗੀ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, a/b/ ਤੇ c/। देखो a/ कितना आ रहा है तुहाडे कोल, इहनूं सॉल्व कर लियो, तुहाडे कोल आ जाऊगा 7 - 8 3। ये मैं तां नहीं करवा रही क्योंकि मैं इस पहला बहुत बार करवा चुकी है चीज़। ठीक है, सॉल्व कर ली तो इत्थों तुहाडे कोल वैल्यूज आ गई। a दी वैल्यू कितनी आ गई 7k, b दी वैल्यू कितनी आ गई -8k, c दी वैल्यू आ गई 3k। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ। ਕਲੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਮੂਵ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ p फ्रॉम द पॉइंट P परपेंडिकुलर P आ परपेंडिकुलर कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया ऑन द प्लेन दिस। आ तुहाडे कोले प्लेन आ, इहदे ते आ P पॉइंट तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया गया। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन एंड द लेंथ एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ व्हाटएवर। एक तो तुसीं इहदी इक्वेशन कढनी है, M ले ली इहनूं, PM दी इक्वेशन कढनी है, M पॉइंट कढना है। ठीक है, उस तो बाद की कढनी है इहदी लेंथ कढनी है। देखो P पॉइंट आपां नूं कितना दित्ता होया 1 2 4 ये दित्ता होया। ठीक है, आप PM की इक्वेशन कढ़ ली, PM की इक्वेशन कढ़ ली। PM की इक्वेशन तुसी किवें कढोगे? हुण जिहड़ा हैगा PM तुहाडे कोले प्लेन दे परपेंडिकुलर, तो लाइन अपने कोले की होगी ए चो पास कर दी है P चो x - 1 y - 2 z - 4 ए चो पास कर दी है। और परपेंडिकुलर किहदे आ ਇਹ प्लेन दे परपेंडिकुलर है, तो जिहड़ा प्लेन दा नॉर्मल है ये प्लेन दा नॉर्मल हुंदा है वो ਇਹਦੇ पैरलल होएगा। अगर लाइन प्लेन दे परपेंडिकुलर है तो वो नॉर्मल दे पैरलल होएगी, ये हुंदा प्लेन दा नॉर्मल। ठीक है, तो ये कितना 2 आ, y नाल 1 है, z नाल कितना -2। ये PM दी इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन सेकंड है। हुण देखो ਇਹਦੇ ਤੇ कोई भी पॉइंट ले लो कि आ जाऊगा 2k + 1 k + 2 -2k + 4। ये पॉइंट आ गया, ये इस लाइन ते पॉइंट आ। हुण जिहड़ा ये पॉइंट आ अगर ये लाइन ते है, ये लाइन ਇਹਦੇ ਤੇ लाई करदी है, ये पॉइंट M आ, ਤਾਂ ਇਹ पॉइंट की होएगा M ਤੇ ਜਾਂ ਹੈਗਾ सॉरी ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ प्लेन ਤੇ लाई करूगा। अगर ये पॉइंट लाइन ते है तो ये पॉइंट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ लाइन ते प्लेन ਦਾ कॉमन पॉइंट आ। ठीक है, M पॉइंट है लाइन ते प्लेन का कॉमन पॉइंट है, तो ये प्लेन ते भी लाई करूगा, इन्हू प्लेन ते लाई करवा दो 2 × 2k + 1 + k + 2 -2 × -2k + 4 + 3 = 0। कितना आ गया 4k + 4 k + 2 + 4k - 8 + 3 = 0। इथों k की वैल्यू कढ़ ली 1/9 आ गई। k की वैल्यू आ गई, उन्हें पुट कर दिओ, अपने को M पॉइंट आ जाओ। M पॉइंट ये पुट करन तो बाद आ गया 11/9 19/9 ते 34/9। P हैगा तुहाडे कोले M हैगा, PM कढ़ दो किहदे नाल x2 - x1 दा स्क्वायर y2 - y1 दा स्क्वायर z2 - z1 दा। क्लीयर।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन दिस। आ प्लेन है, आ पॉइंट P है, ये तो आप डिस्टेंस कढ़ना है मेजर पैरेलल टू द लाइन दिस। ठीक है, उस तो बाद की है ये लाइन दे जिहड़ा हैगा वो पैरेलल। ये लाइन तो आपां प्लेन दा डिस्टेंस फाइंड सॉरी ये पॉइंट दा जिहड़ा हैगा डिस्टेंस फाइंड करना। आ वाले पॉइंट दा डिस्टेंस फाइंड करना। तो पहला अपने कोले ए की है, ए है तुहाडे कोले 1 -2, इनू ए लै लैने, इनू पी लै लैने, तुहाडी बुक वाले ने लिया तो यही लै लैने, कोई गल नहीं। -2 ते 3 ये ए पॉइंट आ गया। हुण प्लेन तुहाडे कोले किहड़ा गिवन आ x - y + z = 5 ते लाइन आ वाली गिवन आ। ठीक है, हुण देखो इक्वेशन लाइन दी जो पास कर दी x - 1 y + 2 z - 3। हुण ये की है, ये जिहड़ी लाइन आ वो तुहाडे कोले आ वाली लाइन दे पैरेलल है, ते इन्हां दे डायरैक्शन रेशोस की होणगे सेम होणगे। आ लाइन बन गई, इहदे ते कोई भी पॉइंट आ वो तुहाडा प्लेन ते भी लाई करूगा। इहदे ते पॉइंट आपां लै लैने k, तो पॉइंट किहड़ा हो गया 2k + 1 3k - 2 -6k + 3। ये पॉइंट तुहाडा हो गया m। ये m पॉइंट आ ते किहदे ते लाई कर रहा तुहाडे कोले प्लेन ते लाई कर ले, प्लेन च पुट कर दो। ये कितना आ जाऊगा 2k + 1 -3k - 2 प्लस -6k + 3 = 0। ठीक है, सॉरी इक्वल टू दिता है तुहानू 5 इक्वल टू हैगा 5। इनू सॉल्व कर लो, k दी वैल्यू कढ लो, k दी वैल्यू आ गई 1/7। ओनू ए च पुट कर दो तो तुहाडा p पॉइंट की आ जाऊगा 9/7 11/7 ते 15/7। ये p पॉइंट आ गया। a पॉइंट तुहाडे कोले आ सीगा, p पॉइंट आ सीगा, ap तुसी फाइंड कर लोगे। ठीक है, ap आपां फाइंड करनी है। क्लियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड द डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन दिस। फाइंड आल्सो द इमेज ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हुण तुहाडे कोले की है, आ तुहाडे कोले कोई प्लेन इत्थे हैगा पॉइंट P, इहदी इमेज इधरों इधर बन रही है P डैश। P पॉइंट तुहाडे कोले की है 1 3 4। प्लेन तुहाडे कोले की है 2x - y + z + 3 = 0। एक तो तुसी की फाइंड करना इत्थे इहदा m पॉइंट, जेड़ा m पॉइंट आ वो इहदा की होएगा मिड पॉइंट होएगा, जेड़ा पॉइंट इहते प्लेन ते लाई करदा है। ठीक है, जदों ये पॉइंट प्लेन ते आऊगा, हुण उस तो बाद प्लेन तो नीचे दी उन्नी डिस्टेंस से जाऊगा जिन्ना ये उपर है, तो यह m तां की है इहदा मिड पॉइंट है। ठीक है, तो पहला आपां की करदे हां pm कढदे हां। pm की है ये चों पास कर दी x - 1 y - 3 z - 4। नीचे की आऊगा, हुण ये की है इहदे परपेंडिकुलर, तो नीचे दे डायरैक्शन रेशोस लग जाणगे -1 ते 1। इहदे ते कोई भी पॉइंट है, पॉइंट किहड़ा 2k + 1 -k + 3 k + 4। ये पॉइंट किहड़ा तुहाडा m, m तुहाडा की है प्लेन ते लाई करदा, प्लेन ते लाई करवा दो। 2k + 1 -1 × -k + 3 +1 × k + 4 + 3 = 0। इथों k दी वैल्यू कढ लो, k दी वैल्यू आ गई -1। ये तुसीं खुद सॉल्व करोगे। k दी वैल्यू आ गई, k दी वैल्यू आ वाले पॉइंट पुट कर दो, तो पॉइंट तुहाडा की आ गया -1 4 ते 3। ये आ गया m पॉइंट। p भी हैगा m भी हैगा। ठीक है, तो तुसीं pm दा डिस्टेंस कढ लोगे। किहड़ा फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 दा स्क्वायर y2 - y1 दा स्क्वायर z2 - z1 दा स्क्वायर। तो pm कितना आ गया √6 यूनिट्स। हुण देखो p डैश नूं आपां अल्फा बीटा ते गामा ले ली, m पॉइंट तुहाडे कोले हैगा, तो अल्फा + 1/2 किहदे इक्वल -1 दे, बीटा + 3/2 किहदे इक्वल 4 दे, क्योंकि m मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट तो आपां ही कढ दिंदे हां। ठीक है, गामा + 4/2 किहदे इक्वल 3 दे। अल्फा की वैल्यू कढ लो -2 -1 -3, बीटा की वैल्यू कढ लो 8 चों 3 गए 5, गामा की वैल्यू कढ लो 6 चों 4 गए 2 आ गया। तो p डैश कितना आ गया -352। ये आ गई इमेज। क्लीयर। ठीक है, तो ये तुसीं चंगी तरह 1-2 बार वीडियो में देख लो, तुहानूं चंगी तरह समझ आ जूगी। पूरी एक्सरसाइज नूं चंगी तरह कर लियो। नैक्सट वीक आपां चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करांगे। ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो चुके हैं। अपने को जी अगली एक्सरसाइज है FO अपने को एक बार सिलेबस नहीं है, उन्होंने बाद चों देखते हैं जब अपना सारा सिलेबस पूरा हो गया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।